7. Apart from above, statistic has a wide application in marketing, production, finance, banking, investment, परचेज, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। ये सारी चीजें क्या इंपॉर्टेंस है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो कितनी इंपॉर्टेंट रखती हैं। इन सारी चीजों को अगर गौर से हम देखें तो हर तरफ हमें स्टैटिस्टिक्स मिलती है। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज लिमिटेड टू न्यूमेरिकल स्टडीज। क्या यहाँ पे है कि इसका जो यूज है वो न्यूमेरिकल स्टडीज में है, क्योंकि जितनी भी हम स्टडी करते हैं उसको फिर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रेजेंट करते हैं और उसी बेस पे हम रिजल्ट देते हैं कि जो हमारा फाइनल सिग्निफिकेंट इफेक्ट है वो क्या आ रहा है। Second limitation, statistical techniques deal with the population or aggregate of individuals rather than with individuals. हमने क्या इस पे स्टडी किया था कि ये कंप्लीट पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करती, पॉपुलेशन में से सैंपल स्टडी करती है और उसकी बेस पे उसको जनरलाइज करने की कोशिश करती है। थर्ड, स्टैटिस्टिकल रिलाइज ऑन एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशंस। हम एस्टिमेट करते हैं, जैसे मफरूजा बनाते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इसकी सोल्यूशन ये होगी, जिसमें हम H0 और H1 बना के उसके ऊपर स्टडी करते हैं। फोर्थ, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स माइट लीड टू फाल्सिएशन कंक्लूजन्स। हमने अगर जो चीज बनाई हुई है उसमें अगर रद्द बदल करते हैं तो क्या होगा, हमारा सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च। Statistics is of vital importance in education research. It does not include measurement of problems such as construction of indices or the scoring of items on a questionnaire. Rather, it involves the manipulation of numbers under the assumption that certain requirements have been met in the measurement procedure. Statistics practically seems to work at the analysis stage of the research process when data have been collected. It does not mean that social scientists can plan and carry out entire research projects without any knowledge of statistics. Planning and carrying out research projects and trying to analyze data without using statistical techniques will carry away from the objectives of the study. Statistics enters in the process right from the beginning of the research when whole plan for the research, selection of design, population, sample analysis, tools and techniques, etc. is prepared. एजुकेशन रिसर्च में देखें तो स्टार्ट कहाँ पे आता है, ये स्टार्ट से लेकर एंड तक आता है जब हमने कोई प्रॉब्लम डिफाइन करना है कि हम ये हमारा टॉपिक है, ये इसके ऊपर हमने ये रिसर्च करनी है। देन उस रिसर्च के लिए हमने करना है कि कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज करना है, उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, उसका सैंपल क्या होगा, उस पर एनालिसिस हम कौन से लगाएंगे, कौन से टूल्स यूज करेंगे, कौन सी टेक्निक्स लगाएंगे और उसके बाद हम अपने रिजल्ट को क्या करते हैं, जो रिजल्ट भी ड्रा करते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसी बेस पे हम कंक्लूजन देते हैं। पॉइंट 6, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Descriptive or inferential statistics. Researchers use a variety of statistical procedures to organize and interpret data. These procedures can be classified into two categories: descriptive statistics and inferential statistics. The state point of dealing with the collection of data is to organize, display, and summarize it effectively. It is the major objective of descriptive statistics. जब भी कोई डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डिस्प्ले करेंगे इफेक्टिवली, इसे हम क्या कहेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का वे है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एज द नेम implies describe the data. Descriptive statistics consist of methods for organizing and summarizing information. These are statistical procedures that are used to organize, summarize and simplify data. In these techniques, raw scores are taken and undergone some statistical techniques to obtain more manageable form. These techniques allow the researcher to describe large amount of information or score in a few indices such as mean, median, standard deviation, etc. ये कहाँ पे आएगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। When these indices are calculated for a sample, they are called statistics. जब mean, median, mode, standard deviation वगैरह हम एक sample के लिए यूज करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ये स्टैटिस्टिक्स है। एंड व्हेन दे आर कैलकुलेटेड फ्रॉम इंटायर पॉपुलेशन दे आर कॉल्ड पैरामीटर्स। जब मीन, मीडियन, मोड और डिस्क्रिप्टिव्स को हम यूज करेंगे पॉपुलेशन के लिए तो ये पैरामीटर्स हो जाएंगे। जब ये सैंपल के लिए यूज करेंगे ये क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक हो जाएंगे। ये क्वेश्चन याद रखिए, मैंने पूछने भी आप लोगों से। Descriptive statistics organizes score in the form of a table or a graph. It is especially useful when the researcher find it necessary to handle
interrelationship among more than two variables. Only summarizing and organizing data is not the whole purpose. कि हमारा यही पर्पज नहीं कि हम डेटा को समराइज करें या ऑर्गेनाइज करें. Of a researcher, he often wishes to make inferences about a population based on data he has obtained from sample. For this purpose, he uses inferential statistics. Inferential statistics are techniques that allow a researcher to study samples and then make a generalization about the population from which they are selected. इन्फ्रेंशियल में क्या है कि वो इस डेटे को कलेक्ट करने के बाद, सैंपल स्टडी करने के बाद उसको इस तरह से स्टडी करे कि उसके ऊपर एनालिसिस और टेक्निक लगाए और लगाने के बाद इतना अच्छे तरीके से अप्लाई करके उस सैंपल से लिया हुआ रिजल्ट वो जनरलाइज करके पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सके, वो पॉपुलेशन में जनरलाइज करे. इस पर्पज के लिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज होती है. Population of a researcher study is typically too large and it is difficult for a researcher to observe each individual. Therefore, a sample is selected by analyzing and the result obtained from a sample. A researcher hopes to make general conclusions about the population. One problem with using sample is that a sample provides only limited information about the population. To address this problem is the notion that the sample should be representative of the population. That is, the general characteristic of sample should be consistent with the characteristic of the पॉपुलेशन. और सेम बात की है कि इस तरह का सैंपल है जो स्टडी को रिप्रेजेंट करे हमारे पॉपुलेशन के ऊपर. वेरिएबल 1.7 वेरिएबल हमने क्या स्टडी किया? वेरिएबल इज जस्ट समथिंग दैट इज लाइकली टू वेरी और समथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन, कि जो चेंज हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो. जैसे a इक्वल 1, a इक्वल 2, a इक्वल 3 वेरिएट कर रहा है वैल्यूज. हमने एग्जांपल्स भी ली थी कि एक क्लास में वेट, एज, कलर, हाइट सब डिफरेंट होती हैं. और क्वांटिटेटिव के लिए और क्वालिटेटिव के लिए स्टडी हमने डिटेल में की थी. ये हम पिक्चर देखते हैं. वेरिएबल, न्यूमेरिकल वेरिएबल और कैटेगोरिकल वेरिएबल, दो इसकी सब टाइप्स है. उसके अंदर न्यूमेरिकल में डिस्क्रीट वेरिएबल आएगा और कंटिन्यूस वेरिएबल है. कैटेगोरिकल में नॉमिनल और ऑर्डिनल. लेवल ऑफ मेजरमेंट्स, लेवल ऑफ मेजरमेंट हमने नॉमिनल स्केल किया है, ऑर्डिनल स्केल स्टडी किया था, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल. नॉमिनल स्केल सिंपल. A nominal scale is the simplest form of measurement researcher can use. The word nominal means having to do with the names, नाम्स के साथ. Measurement made on this scale involves merely naming things. It consists of a set of categories that have different names such as measurement label and categorize observation but do not make quantitative distinction between them. Example अगर हम लेते हैं तो एक कैटेगरी बनाते हैं मेल एंड फीमेल. किसी भी चीज को नेमिंग के साथ अगर आप स्केलिंग करेंगे, उसकी मेजरमेंट करेंगे, उसको नॉमिनल स्केल बोलेंगे. ऑर्डिनल स्केल. इन ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट द कैटेगरी दैट मेक अप द स्केल नॉट ओनली हैव स्पेयर. सफदर हुसैन, आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो रहा है, फिर कोई बीच में गैप रखते हैं 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर के लिए. ऑर्डिनल स्केल. ऑर्डिनल स्केल में हम क्या करेंगे? इन ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट द कैटेगरीज दैट मेक अप द स्केल नॉट ओनली हैव सेपरेट नेम्स बट आल्सो आर रैंक्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. This scale consists of a set of categories that are organized in an ordered sequence. For example, a manager of a company is asked to rank employees in terms of how well they perform their duties. The collected data will tell us who the manager consider the best workers, the second best and so on. इस order में हम क्या करते हैं? उसको organize कर देते हैं order में. Intervals. An interval scale possesses all the characteristics of an ordinal scale with additional features that the category form a series of interval that are exactly of the same size. इसमें हम क्या करते हैं? सीरीज की साइज होती है. जैसे हम ग्रुप बनाते हैं 0 से 1, 1 to 2 या 0 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक, तो ये एक इंटरवल्स बन जाते हैं. रेशियो स्केल. A ratio scale has all the characteristic of an interval scale. इंटरवल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक रेशियो स्केल में. इसमें एडिशनल क्या आता है? बट एड्स एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट. 0 पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है. The scientific method. साइंटिफिक मेथड में क्या था कि हम आज क्वेश्चन करेंगे,